Hello students, how are you? Hope you all are fine, enjoying at home and studying well. So today we are going to start the third video of the chapter of determinants of class 12 mathematics. This is the determinant chapter of class 12 mathematics and this is the third video. Hope you have seen the previous videos. And today in this video we will start with some concepts of determinants, application of determinants, and then we will go to the inverse of matrix by the help of determinant method. Okay, and we'll study about the adjoint and all these related things. So let's start. So first of all, let us study what is the meaning of minor in determinant. Suppose, what is minor? Suppose I have a A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This is a matrix. Sorry, this is a determinant. Now, what we actually mean by minor? What is the meaning of minor? So minor of Aij means what? Minor of Aij will be a 2 into 2 determinant to a second order determinant if we remove the ith row and jth column. Okay students, if we remove the ith row and jth column, then whatever remains will be the minor. So minor of Aij is the determinant obtained by removing the ith row and jth column. For example, let us take the minor of A11. Suppose let us study what is the minor of A11. Now how will I get it? क्या करना होगा? अब minor of A11 का मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या बताया था, minor of Aij का मतलब क्या है कि ith रो और jth कॉलम को हटा दो. यहाँ पे i का वैल्यू भी 1 है और j का वैल्यू भी 1 है, इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो. तो इफ वी रिमूव द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स? बोलो. A22, A32, A23, A33. ओके, कैसे किया हम लोग फर्स्ट रो को हटा दिए. ठीक है, ये रहा फर्स्ट रो, इसको हटा दिए, ये हटा दिए, तो क्या बचा? A22, A23, A32, A33. अब इसका वैल्यू तो हमको पता है. कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, उस तरीके से इसका वैल्यू निकल जाएगा. उसी तरीके से सपोज हमको माइनर ऑफ A23 निकालना है. माइनर ऑफ A23 तो क्या करना है स्टूडेंट्स? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हटा दो. तो ये रहा सेकेंड रो और ये रहा थर्ड कॉलम. तो अगर हम सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हटा देते हैं तो क्या बचेगा बोलो? वी विल गेट A11, सेकेंड रो को हटाना है, थर्ड कॉलम को हटाना है. A12, A31, A32. इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द कोफैक्टर. नाउ व्हाट इज कोफैक्टर? The minor with proper sign means, suppose I have an element Aij and its minor is suppose Mij. Now cofactor of Aij will be what? What will you do? Minus 1 to the power I plus j into Mij. So this is the formula. So what is the formula of cofactor of Aij? Minus 1 to the power I plus j into the minor of Aij. So if this I plus j, this sum of I and j becomes a even number, then minor and cofactor will be same. And if the sum of I plus j comes out to be an odd number, then what will happen? Suppose here it is even, here it is odd. Then what will happen? Then the cofactor will be the negative sign, opposite sign of minor. So if we see
So what will be A11? So what will be the A11? This will be positive. If we see, this will be positive because 1 plus 1 is an even number. 1 plus 2 is an odd number. 1 plus 3 is an even number. 2 plus 1 is an odd number. Odd number means minus, plus, minus, again plus, minus, plus. So these are this sign which I have written are the signs of the cofactor. So this is the relation between minor and cofactor. Now we have studied about the expansion of a determinant. Okay, so how to expand the determinant? So what we can see, the value of any determinant can be, suppose I have a determinant, I have written here A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. So what will be the value? A11 into C11 plus A12 into C12 plus A13 into C13. Okay. So A11 into cofactor of this term, A12, so this we have expanded by the R1. As you know, we can expand by any row, any column. Suppose I am expanding with R2, then what will I get? A21 into C21 plus A22 into C22 plus A23 into C23. So any row, any column you take, so value is what? The sum of what? The element, the sum of the products. Mind it, sum of the products of the element with its cofactor. So that is what? The value of the determinant. Okay. So this way we can expand it. So we have done the expansion and so let us do one sum, simple sum, and then we will go to the next topic. Okay. So now what is the sum? The sum is find the minor and cofactor. Suppose a determinant is given. Any determinant 2, 3, minus 1, 9. Now they ask you find the cofactor. Let's find the cofactor. Find the cofactors of the elements, of all elements. So this is a 4 element, 2, 3, minus 1, 9. Now let's start. Cofactor of 2 will be what? Now 2 is what? Let us write A11, A12, A21, A22. Now what is the ij of 2? 1, 1. What is the ij value of 2? First row, first column. So what is the ij value? 1, 1. So minus 1 to the power 1 plus 1 into. Now see what happens. Now what is the rule? Remove the ith row and jth column. Means remove the row and column in which the element is. So 2 is in the first column, first row. So if I remove first column, first row, what is remaining? Only 9. The cofactor of 2 will be, that is, and this is what? Plus 1 into 9. Cofactor of minus 1. Now students, what is minus 1? Minus 1 to the power 1 plus 2. And what will be the cofactor? What will be the minor of minus 1? So if you remove this first row and second column, so what you are getting? You are getting only 3. So this is 3. And you know from here you will get minus 1, so this will become minus 3. Similarly, cofactor of 3 is what? Tell me. Minus 1 to the power 2 plus 1. Second row, first column. And if I remove this row column, what I am getting? Minus 1. So minus 1 into minus 1 gives plus 1. And cofactor of 9 is minus 1 to the power, second row, second column, 2 plus 2. And what is the remaining? If I remove this, what is remaining? 2. This is plus 1 into 2, 2. So students, this way we can also find the cofactor of 3 into 3. There will be, here we are getting a single number. If we go to find the cofactor, there will be a small determinant. We have to solve it. Because there are 9 elements, so there will be 9 cofactors. Okay? So this way we can find the cofactors of any element.
any element of the determinant. Now where we apply this, what is the application of determinant? Now next topic, please note it down, application of determinant. See, suppose, so first point is area of triangle. Area of triangle. Suppose in coordinate geometry it is given the vertices of a triangle are A, x1 y1, B, x2 y2, C, x3 y3. Okay students, so area is what? Half x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. So if you expand this determinant, if you expand the value, whatever, and this will be in mod sign. This is determinant, this will be in mod sign. Why? Because we know that area of a triangle cannot be zero, negative. So this value can come negative, but we are getting it, if the value comes negative, if it is not necessary that always will come negative only. अगर नेगेटिव आया तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मॉड साइन दे रहे हैं. मॉड साइन देने से क्या होगा? मॉड साइन के कारण ये पूरा वैल्यू जो भी आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू. तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके, जैसे कि हम लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं हाउ टू एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट, हम लोग एक्सपैंड करके जो वैल्यू पाएंगे वो होगा इसका वैल्यू. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है कि इफ मान लो कि ये डिटर्मिनेंट या 3 पॉइंट दिया हुआ है, x2 y2 1, x3 y3 1. मान लो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है. मान लो ये हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किए, रो 1 r1 r2 c1 c2 किसी भी तरीके से हम लोग एक्सपैंड किए और इसका वैल्यू कितना निकला स्टूडेंट्स? 0 निकला. तो ये क्या प्रूफ करता है? इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, इट मींस द पॉइंट्स a b c आर कोलिनियर. अब कोलिनियर क्या है? दोनों तो छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी मैं बोल दे रहा हूं कि 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोलिनियर. तो ये एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट्स का. ठीक है, तो ये हम लोग एक पढ़ चुके हैं. एक सिंपल सा सम करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द. अच्छा, तो दिस इज द, नाउ वी आर गोइंग टू ऑन सम. एक सम करते इस तरीके से और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे. ओके, तो वी आर डूइंग वन सम. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस -3 0 3 0 एंड 0 के. देखो, एक ट्राइंगल का वर्टिसेस दिया है -3 0 3 0 और 0 के. ठीक है, और बोल रहा है क्या कि इसका एरिया 9 है. इसका, इस ट्राइंगल का ये एक तीनों क्या है? दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एंड इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. तो क्या करना है अपने को? हम लोगों को के का वैल्यू फाइंड करना है. ओके स्टूडेंट्स, सिंपल. तो राइट, तो लिखो सॉल्यूशन. गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 9, देयरफॉर हाफ -3 0 1 3 0 1 0 के 1 इज इक्वल टू 9. तो इसको इधर ले लिए. अब इसको हम क्या करते हैं? एक्सपैंड करते हैं. तो यहां पे देखो, यहां पे क्या है? यहां पे हम लोग किससे एक्सपैंड करेंगे? C2 से. क्यों C2 से एक्सपैंड करेंगे? क्योंकि C2 में यहां पे क्या दिया हो? 3 0 एंड 0 के. अच्छा, तो यहां पे क्या है? इसमें 3 तो ये आ गया. तो अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं और इसका वैल्यू क्या है? तो ये मॉड साइन भी है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो -3 0 1 3 0 1 0 के 1 इज इक्वल टू ±18. अब तुम बोलोगे स्टूडेंट प्लस माइनस कैसे आ गए? इसका रीजन क्या है कि मान लो मॉड ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू y. इफ मॉड x इक्वल्स टू y, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? प्लस या माइनस y दोनों होता है. तो रूल सिंपल है, इफ मॉड x इक्वल टू y, देन द वैल्यू ऑफ x कैन बी प्लस माइनस y. तो लेट अस एक्सपैंड थ्रू C1, सॉरी C2. तो देखो यहां पर क्या है? k का टर्म क्या होता है?
ये दोनों क्या पता है, प्लस माइनस प्लस, तो यहां पे क्या लेंगे माइनस के, और उसका कोफैक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स के का, के जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा दो, तो -3 3 1 1 इक्वल टू प्लस माइनस 18। तो माइनस के ये कितना आया -3 ओके इज इक्वल टू प्लस माइनस 18। तो यहां से क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 6, तो और ये -6 माइनस के मतलब 6 के इक्वल टू प्लस माइनस 18। तो के का वैल्यू क्या निकला, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो इस तरीके से हम लोग के का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस याद रखना ये मॉड साइन कि मॉड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 9, और ये जब मॉड साइन यहां पे हट गया तो इसीलिए यहां पे प्लस माइनस आ गया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैट्रिसेस के रिलेटेड है। अभी तक हम लोग डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ लिए, नाउ वी आर गोइंग बैक टू मैट्रिसेस। ओके, और ये डिटर्मिनेंट चैप्टर से रिलेटेड, इसीलिए मैट्रिसेस का ये पार्ट इस चैप्टर के अंत में दिया हुआ है। नाउ सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक इज सिंगुलर एंड non-singular. Now, so what is the concept? The concept is a square matrix A is said to be singular if data equal to 0. ठीक है, हम बताया पिछले क्लास में कि ये मॉडल नहीं होता है, ये क्या होता है डिटर्मिनेंट नहीं होता है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is singular if data equal to 0. ठीक, मान लो कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो 2 into 2 ऑर्डर का हो, 3 into 3 ऑर्डर का हो, अगर उसका जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या समझेंगे स्टूडेंट्स कि दैट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड इफ इट इज नॉट 0, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर अदर देन 0, तो क्या होगा, तो इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो अब हम लोग एक सम करते हैं इस सिंगुलर नॉन सिंगुलर पे, उसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज इफ द मैट्रिक्स A is equal to 6 2 minus 10 x minus 1 5 2 2 2 is singular, find x। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो लिख दो कि गिवन a इज अ सिंगुलर, देयरफॉर 6, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में ट्रांसफॉर्म कर दिए, x minus 1 5 2 2 2 इक्वल टू 0। अब 6 इंटू क्या होगा, चलो हम R1 से एक्सपेंड करते हैं, 6 इंटू -2 -10 माइनस x इंटू 10 -10 प्लस माइनस x इंटू सॉरी 2 2 जा 4 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 20, और ये क्या हुआ 2 इंटू 10 - 10 इक्वल टू 0। ओके, सिंपल। तो कितना आ रहा है हम लोग का -12 के -12 इंटू 6 कितना होता है, ये आया -12 इंटू 6 कितना होता है, -12 6 जा 72, तो -72 -24x और प्लस 0, ये 10 - 10 0 हो गया इक्वल टू 0। तो -24 के इक्वल टू 72, तो के का वैल्यू क्या निकला, 24 3 या 72, तो के का वैल्यू निकला -3। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन एंड वी विल नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो this way we can do the sums of singular matrix.
Now the next topic is adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix. Now what is adjoint? Suppose A is a matrix. Okay. Now if you want to find the adjoint of a matrix is also a matrix. पर कैसा मैट्रिक्स? मान लो A एक मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स है. यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, एडजॉइंट, इनवर्स, सिंगुलर, ये सब क्योंकि डिटरमिनेंट के रिलेटेड है. डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर होता है, तो ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर ही होगा. तो A एक मैट्रिक्स है. अब इसका एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? रूल क्या कहता है कि A के जो एलिमेंट्स है उनको हम लोग उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दे रहे हैं. मान लो A का एलिमेंट है A11, A12, A13, सॉरी ये क्या हो जाएगा? ये होगा A21 और ये क्या होगा? A22. ठीक है स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स है. अब हम लोग क्या करेंगे? A की जगह पर उसका कोफैक्टर लिख दो, जो भी होगा. चलो हम लोग C11 लिख देते हैं फिलहाल. इसका क्या होगा? C12 होगा. इसका क्या होगा? C21 होगा. इसका क्या होगा? C22 होगा. तो हम लोग पहले क्या किए? जो एलिमेंट है उसके जगह पे उसका कोफैक्टर को लिख दिए. और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग उसको ट्रांसपोज कर दे रहे हैं. तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या मिलेगा? C11, C12, C21, C2. ओके. तो ये जो मैट्रिक्स बना, मतलब देखो स्टेप्स क्या है फिर से समझ लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग द एलिमेंट्स, वी आर रिप्लेसिंग द एलिमेंट बाय द कोफैक्टर, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग? उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? उसको ट्रांसपोज कर दे रहे हैं. तो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है वो मैट्रिक्स क्या हो गया? दिस इज द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. ओके, ये मैट्रिक्स क्या होगा? इसका एडजॉइंट है. ओके, अब हम लोग एडजॉइंट निकालने का ये दो सम कर लिए और फटाफट हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं. अब एडजॉइंट तो कर लिए. ओके, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4. सपोज एक 2 into 2 ऑर्डर में करते हैं, फिर बाद में 3 into 3 ऑर्डर का भी दिखाएंगे. 1 2 3 4. अब अगर तुमसे पूछे एडजॉइंट ए क्या होगा, क्या करोगे? बोलो डायरेक्ट. अब इस 1 का पहले बात समझ लो कि ये और ये साइन चेंज होगा. रूल क्या है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. ठीक है. और अगर 2 into 2 ऑर्डर है तो हम लोग कितना लेंगे, और 3 into 3 ऑर्डर है तो पूरा लेंगे. तो इसका मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब ये दो इधर का डायगोनल के एलिमेंट तो सेम रहेगा, साइन सेम रहेगा. ये दोनों का साइन क्या होगा? चेंज होगा. ओके, अब 1 का कोफैक्टर क्या होगा? 4. 4 का क्या होगा? 1. 2 का क्या होगा? -3, साइन चेंज. और 3 का क्या होगा? -2. हो गया. और उसके बाद क्या करना है? ट्रांसपोज. डोंट फॉरगेट दिस. एक लोग भूल जाते हैं, कोफैक्टर चेंज करके छोड़ दिए. और फिर क्या हो गया? -4, -3, -2, 1. सॉरी 4 -3 2 1. तो हम लोग एक चीज डायरेक्ट तरीका क्या रखोगे 2 into 2 ऑर्डर का, कि अगर मान लो ये तुमको एलिमेंट दिया हुआ है तो क्या हो रहा है? यहां पे खाली, यहां पे क्या हो रहा है? एलिमेंट चेंज हो रहा है. यहां पर इस डायगोनल में क्या चेंजेस आ रहा है? एलिमेंट चेंज आ रहा है. और इस डायगोनल में क्या आ रहा है? देखो 2 3 यहां भी 2 3 वहां भी, लेकिन साइन चेंज हो गया. तो इधर खाली क्या होगा? इधर पे क्या होगा? इधर पे होगा डायगोनल एलिमेंट चेंज, इधर पे क्या होगा? साइन चेंज. तो ये हो गया हम लोग का 2 into 2 ऑर्डर का वैल्यू. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड द 2 into 2 ऑर्डर. ठीक है. अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. इनवर्स किसको कहते हैं? तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. वहां पे हम लोग देखे थे
हाउ टू इनवर्स का मतलब क्या पढ़े थे? अच्छा, इनवर्स में जाने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स का, एडजॉइंट का, वो मैं बता दूं कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, प्लीज नोट इट डाउन, इज इक्वल टू डेटे टू द पावर n माइनस वन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसके ऊपर भी सम चाहता है, हम लोग एक सम करेंगे, उसके बाद में इनवर्स में जाएंगे। मॉड ऑफ एडजॉइंट ए मतलब एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डेटे टू द पावर n माइनस वन, इज इक्वल टू डेटे टू द पावर n माइनस वन। n क्या है? n इज द, लिख लो, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। n क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब इसके ऊपर प्रूफ करना है। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, एक चीज को प्रूफ करना है कि इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो प्रूफ करो क्या कि एडजॉइंट a इज इक्वल टू डेटे टू द पावर n माइनस वन। अब मुझे बताओ कि इसके n क्या होगा, इसके लिए n क्या होगा? इसके लिए n तो 2 होगा ना, तो 2 माइनस वन, मतलब हमको प्रूफ क्या करना हो गया? तो प्रूफ दैट एडजॉइंट a इज इक्वल टू डेट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डेट ऑफ a। मतलब एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट का वैल्यू और a का डिटर्मिनेंट का वैल्यू दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। तो पहले हम लोग a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। क्या आएगा बोलो? 1 2 3 4, कितना आएगा? 4 और 3 2 जा 6, कितना आ गया? -2। अब डेटे निकालते हैं, चलो। एडजॉइंट ए क्या होगा? एडजॉइंट ए कैसे करेंगे? 1 का क्या होगा? 1 का 4, 4 का 1, इसका -3, इसका -2, और फिर ट्रांसपोज करना है, तो क्या बन जाएगा? 4 -3 -2 1। ठीक है, इधर पोजीशन चेंज, उधर साइन चेंज, इधर दोनों का पोजीशन चेंज, इधर दोनों का साइन चेंज, डायरेक्ट तरीका। अब इसका डेट निकालो। डेट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा? 4 1 जो 4 माइनस ये दोनों क्या आएगा? -2 आएगा। तो प्रूव हो गया ना कि डेट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए। अगर 3 into 3 ऑर्डर होता तो ये क्या होता? ये n का वैल्यू क्या होता? 3 होता। तो 3 - 1 इज 1 2, 3 - 1 इज 2। तो हमको इस नंबर का स्क्वायर प्रूफ करना पड़ता है। इसे -2 का स्क्वायर 4, तो ये भी 4 आता है, ये भी 4 आता है, इस तरीके से कर लेना बुक से प्रैक्टिस। अब आते हैं हम लोग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आज का, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स? तो इनवर्स का मतलब तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में देखे थे हम लोग कि इफ ए इज मैट्रिक्स, इफ ए बी इज इक्वल टू आई। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था कि मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ ए बी इक्वल्स टू आई, देन बी इज इक्वल टू आई, ए इनवर्स। और हम लोग वहां पे प्रूफ किए थे, फाइंड किए थे इनवर्स कैसे? बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। दिस इज ये इसके पहले वाले वीडियो में हम लिख चुके हैं। ओके, मैट्रिसेस के सेकंड वीडियो में, सॉरी। अब हम लोग करेंगे इनवर्स बाय द एडजॉइंट मेथड। तो इनवर्स का यह डिफिनेशन क्या है कि इफ ए इज एनी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई इंटू एडजॉइंट A। ओके, तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? 1 बाई डेटे टाइम्स एडजॉइंट A। मतलब एडजॉइंट A तो मैट्रिक्स है ना, उसके हर एक एलिमेंट को किससे डिवाइड करना है? डेटे से। इसीलिए बोला गया कि अगर डेटे 0 हो गया तो डिवीजन 1/0 तो अनडिफाइंड होता है। इसीलिए बोला गया कि A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर A सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो, इफ A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो क्या करेंगे? तो लिख देंगे एज A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है, हर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है। इनवर्स किसका निकलता है? जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होते हैं।
सिर्फ उनका। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? तो जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होते हैं सिर्फ हम लोग उसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग करेंगे इनवर्स का दो सम, एक 2 into 2 ऑर्डर का और एक 3 into 3 ऑर्डर का बाय द एडजॉइंट मेथड। तो 2 into 2 ऑर्डर का सम तो समझ में आ जाएगा, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं 3 into 3 ऑर्डर का। ओके, तो a इज इक्वल टू माइनस 1 to 1, यहां पे दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 to 1 और -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 1 और 0 0 1। ओके, अब पूछा फाइंड द इनवर्स। तो देखो, जब भी तुमको कोई मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने को दे, पहला काम क्या करोगे? तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? तो एडजॉइंट ए का रूल क्या बताए थे हम लोग कि जितने भी मैट्रिसेस एलिमेंट्स है सबका अलग अलग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालना होगा। अलग अलग क्या निकालना होगा स्टूडेंट्स? कोफैक्टर। चलो काम पे लग जाते हैं। अब इस 1 का कोफैक्टर क्या होगा, और वो साइन याद रखना। अच्छा, साइन पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम सबका माइनर निकालते हैं, कोफैक्टर का बाद में बात करते हैं। 1 का क्या होगा? -1 0 0 1। ओके, इस 1 का यही ना होगा, हम लोग ये पार्ट ले रहे हैं। ओके, अच्छा, ये बीच वाले -1 का क्या होगा? 2 1 0 1। ओके, इस 0 का क्या होगा? 2 1 -1 0। ये 2 का क्या होगा? -1 0 0 1। इस -1 का क्या होगा? 1 1 0 1। अब इस 0 का क्या होगा? 1 1 -1 0। ओके, समझ में आ रहा होगा? जो एलिमेंट जहां पर है उसके रो उसके कॉलम को ऑमिट कर देना है। 1, तो ये रो ये कॉलम हट गया, क्या मिला? -1 -1 0 0। ये 0 क्या मिला? 1 2 0 0। ठीक है, ये 0 इस रो इस कॉलम में आ रहा है, तो 1 2 0 0। और ये 1 का क्या मिला? ये 1 का क्या मिला? 1 2 -1 -1। ओके, ये एक बड़ा सा मैट्रिक्स बन गया। जो ही मैट्रिक्स, अब इसको हमको ट्रांसपोज भी करना है और उसके बाद बन जाएगा ये एडजॉइंट। अब रहा बात साइन का, प्लस माइनस साइन। तो रूल मैंने क्या बताया था? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मतलब अगर देखा जाए तो याद रखने का तरीका, रोम्बस 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, ये 4 टर्म नेगेटिव होते हैं। यहां पे 9 टर्म्स है, 4 नेगेटिव है, 5 पॉजिटिव। ओके, कौन से 4 नेगेटिव है? ये R1 का 1, R2 का 2 और R3 का 1। ठीक है, अब वैल्यूज फाइंड करते हैं फटाफट। तो -1, ये आ गया -1। ये क्या आएगा? माइनस बाहर में है, अंदर में क्या? 2 -0, मतलब हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं -2। ये क्या हुआ? 0, अब माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 1। अब ये माइनस यहां पर है, -1 मतलब 1। बाहर में माइनस, सॉरी यहां तो माइनस होगा नहीं, ये तो तुम्हारा क्या होगा? ये तो प्लस होगा, तो ये हो गया -1। अच्छा, तो प्लस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस, ये प्लस माइनस। ठीक है, तो अगर ये माइनस रहता है तो हम लोग क्या लेंगे? इसको +1 लेंगे। अच्छा, ये प्लस हो गया तो क्या होगा? 1 -0 यानी कि 1, और ये माइनस, और ये 3 माइनस आ गया यानी कि -1। ओके, 0 माइनस -1, तो एक बाहर में माइनस है, तो टोटल 3 माइनस हो गया यानी कि -1। अब यहां पे आओ, अब प्रॉपर्टी लगाओ, इस डिटरमिनेंट में 2 0 है तो 0 होगा, यहां पे 2 0 है तो 0 होगा, और ये क्या हो गया? -1 + 2 यानी कि 1 होगा। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज करने से क्या बन जाएगा?
-1 -2 1 -1 -2 1 1 1 -1 और 0 0 1। ओके, तो ये जो मिला हम लोगों को, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? अब हम लोग को इनवर्स निकालना है। तो उसके लिए एक चीज और निकालना पड़ता है। वो क्या है? वो है दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द डेट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम लोग देखेंगे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं। तो डिटर्मिनेंट का तरीका मैं कि शुरू में क्या बताया था? A11 इंटू क्या है ये? A11 इंटू C11, A22 C22, A33 C33। चलो कर लेते हैं। तो 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -2 और प्लस 0 हो गया। A11 ये क्या रहा? ये -1 क्या है? इसका कोफैक्टर है। ये -2 क्या है? इसका कोफैक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से। अच्छा, तो अब क्या होगा? -1 + 2 यानी कि 1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका इनवर्स निकल सकता है। मतलब इसके इनवर्स, मतलब ये सिंगुलर नहीं है, इसके इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, तो अब करना क्या है? जो डेटे निकला, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? 1/डेटे एट डेटे इंटू क्या स्टूडेंट्स? एडजॉइंट ए। यही तो इन्हें फॉर्मूला बताए थे। तो क्या करना है तुम लोगों को? इसके एलिमेंट्स को किससे डिवाइड करना है? 1 से। तो 1 से डिवाइड करने से कोई कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो वी विल गेट द सेम एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब लिख देते हैं क्या क्या लिखते हैं? सॉरी, तो ये आ गया इज इक्वल टू, अब क्या आ गया लिख दो इसको, इज इक्वल टू -1 -2 1 1 1 -1 0 0 1। ओके, तो दिस इज द वैल्यू मेथड ऑफ फाइंडिंग द एडजॉइंट एंड इनवर्स। तो इसमें हम लोग एडजॉइंट निकाले, डिटर्मिनेंट डेटे निकाले और इनवर्स निकाले। तो दिस इज द टोटल मेथड ऑफ डूइंग द सम्स। ओके, तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सम्स के एडजॉइंट इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब इसका जरूरत क्या है? हम लोग क्यों इनवर्स कर रहे हैं? तो उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज द नीड। तो वो हो गया हम लोग का जो अगला टॉपिक है, वो है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। हालांकि हम इस वीडियो में एक ही सम दिखा रहे हैं, हम अगले वीडियो में इसके बारे में और डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। हम इस वीडियो में एक ही सम दिखा रहे हैं क्या? x + 2y = 2 एंड 2x + 3y = तो x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। ये दो सम दिया हुआ है, ठीक है। अब दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स हम लोग ऐसा इक्वेशन तो क्लास 8 9 से सॉल्व करते आ रहे हैं, है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन। बट बोला है कि प्रूव बाय मैट्रिक्स मेथड, और इसी का एक और नाम है मार्टिन रूल। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मार्टिन्स रूल। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज मार्टिन्स रूल। अब देखो, तो हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए क्या होगा? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 2 3। और एक मैट्रिक्स बनाते हैं एक्स, वो क्या होगा? जो वेरिएबल मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स बनाते हैं बी, वो क्या होगा? कॉन्स्टेंट्स मैट्रिक्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ax = b, तो x = a इनवर्स b। तो x का वैल्यू क्या निकला? x = a इनवर्स b। अब ये जो इनवर्स है वो हम कैसे निकालेंगे? वो हमको निकालना पड़ेगा बाय दिस मेथड। तो पहले देखो, पहले हम लोग एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए का डायरेक्ट तरीका में क्या बताया था कि यहां पर पोजीशन चेंज होगा और यहां पर साइन चेंज होगा। ओके, याद आ रहा है? नहीं तुम खुद कर लेना जैसे करते हो। इन दो नंबर्स का पोजीशन चेंज होगा, इन दो नंबर का साइन चेंज होगा। डायरेक्ट तरीका, इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये दो नंबर का पोजीशन चेंज हो गया। अब यहां पे पुट कर दो और डेटे कितना है? डेटे फाइंड करो। 3 1 जा 3 -4 कितना आ गया? -1। तो ए इनवर्स कितना निकला? अब क्या करेंगे?
इन सभी एलिमेंट्स को -1 से डिवाइड कर देंगे। तो -1 से डिवाइड करने का मतलब सिर्फ साइन चेंज होगा, है ना, सिर्फ साइन चेंज होगा। तो ये क्या निकला, ये निकल गया हम लोग का A इनवर्स। अब इसको यहां पुट करो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू -3 टू 2 - 1 इंटू बी क्या था 2 3। ओके, अब ये एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। अब मैं थोड़ा बोर्ड को रब कर दे रहा हूं। ये एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन है और इस सिंपल मल्टीप्लीकेशन करने से हमको क्या मिलता है, जैसे हम लोग जानते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -6 + 6 -6 + 6 और नीचे में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 4 - 3। ओके, इक्वल टू, अच्छा यहां पर इधर x है तो इसको इधर लिख दे रहे हैं। x का मतलब क्या xy, तो x का वैल्यू क्या निकला 0 और y का वैल्यू क्या निकला 1। अब तुम पुट कर लो 0 + 2 1 2 2 0 + 3 1 3 3, बस सिंपल। x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर डूइंग द सम्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो ये हो गया मैट्रिक्स रूल। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रख रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्योंकि सब सम्स मेथड देखो डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस बोथ चैप्टर्स आर कंप्लीटेड। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम मोर सम्स ऑफ द these two chapters. Okay students, I hope please practice more sums from the book, with whatever book you are following. Okay, no, that doesn't matter. Okay, whether you are following R.D. Sharma or M.L. Agarwal or science, that doesn't matter. Any book you follow, but practice maths. Lots of sums. Okay, okay, have a nice day.